ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ NCH ਹੌਜ਼ਰੀ ਵਰਕ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਥਾਪਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਨੂ ਥਾਪਰ, ਅਰੂ ਥਾਪਰ ਤਮੀਜ਼ਾ, ਗੌਰਵ ਤਮੀਜ਼ਾ, ਅੰਕੁਰ ਥਾਪਰ, गरिमा थापर, इवान, इवांशका, अनायरा तमीजा, अरहांश तमीजा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਵਦੁਰਗਾ ਮੰਦਿਰ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਥਾਪਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਥਾਪਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 5 ਜੂਨ 1963 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਫਰਮ ਨਿਊ ਕੈਪੀਟਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ NCH ਹੌਜ਼ਰੀ ਵਰਕਸ ਵਾਲੇ ਗੋਲਚਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਸਭਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 6 ਦਸੰਬਰ 1983 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਨੂ ਥਾਪਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰੀ ਅਰੂ ਥਾਪਰ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਅੰਕੁਰ ਥਾਪਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਰੂ ਥਾਪਰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਤਮੀਜ਼ਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅੰਕੁਰ ਥਾਪਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਥਾਪਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਥਾਪਰ ਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਥਾਪਰ ਜੀ ਖੁਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੇਨੂ ਥਾਪਰ ਜੀ BJP ਦੇ ਉੱਘੇ ਲੀਡਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਥਾਪਰ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਥਾਪਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਥਾਪਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
का संग किए साथ, राम नाम की बहुत बड़ाई, सत्य साधु संत से आने, तापसी योगी से कर जीवन, आवना भक्ति भरे भजने, भजते भक्त भाव भरपूर, पंडित पुरुष प्रधान, करते राम राम जप ध्यान, सुर पे रमाते, देव देवी गण जय विधाता, राम राम सुगुण जन गाते, कीर्तन कथा करते वे मंत्र अति मधुर, होता तीनों लोक में राम नाम गुण गान, मिथ्या मन कल्पित मत जाने, मिथ्या मन मुखिया मनोरा, मिथ्यावाद विवाद विरोध, मिथ्या जो दुर्गुण दुख आदि अंत और मध्य राम, राम नाम जप भाव से करन पुरुष पालक प्रभु हरता पात्रता। इस स्थान पे प्रार्थना सभा में भाई अरुण थापर जी, उनकी आत्मिक शांति के लिए हमने प्रार्थना की है, श्री अमृतवाणी का पाठ किया है। मन में पीड़ा भी है, दुख भी है, लेकिन मैं शोक सभा नहीं कहूँगा, शोक निवारण सभा ये कहूँगा। श्री राम शरण परिवार से बहुत पुराना थापर परिवार जुड़ा हुआ है। पता चला मन में पीड़ा भी हुई, दुख भी है, लेकिन उस परमेश्वर के चरणों में यही प्रार्थना की है कि हे परमेश्वर, वो पावन आत्मा आपके धाम से सांसों की पूंजी लेके इस धरती पे आए, अपने कर्मों को पूर्ण करते हुए समाज के प्रति, धर्म के प्रति, परिवार के प्रति परमेश्वर की आज्ञा से ही परमेश्वर के धाम को जा विराजे हैं। जिसने भी जन्म लिया है उसके लिए जाना तो अवश्य लिखा है, लेकिन समय की बात हो गई, अभी बहुत कार्य करने शेष थे, आयु भी ज़्यादा नहीं थी, तो मन में इस बात का दुख भी है। लेकिन संत वचन है कि चिंतन में जन काल बिताते, पल में पासे पलटे खाते, चाहे कितना सोचे प्राणी, भावी फिर भी जाए न जानी। तब कहते हैं सुजन सियाने, राम की बातें राम ही जाने।
यहाँ पे एक विचार करने की बात है कि इस जीवन के लिए एक संत कवि ने जो शब्द कहे हैं कि क्षण भंगुर जीवन की ये कलिका कल रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल पर्वत की सुगंध समीर कल रात को जाने मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता नम्र से ये चोट झिली न झिली, भज ले हरि नाम मेरी रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। 6 चीजें परमेश्वर ने अपने हाथ में रखी हुई हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार जीवन मरण, हानि लाभ, यश अपयश, ये 6 चीजें परमेश्वर के हाथ में हैं, हमारे वश में नहीं है। तो हमारे वश में क्या है? कितनी देर धरती पे रहना है हम नहीं जानते, कौन हमारा अगला जन्म होगा, कैसा होगा, ये भी हमारे वश में नहीं है। तो हमारे वश में है क्या कि सोच करें क्या पुण्य कमाया, कितना जीवन काल बिताया, या सोच करें क्या पाप कमाया, कितना जीवन काल गंवाया। जो भी कर्म हम करते हैं वो कर्म बीज हैं। हम धरती में बीज डालते हैं गेहूं का, अगर 20 से डालते हैं, 20 किलो डालते हैं, तो फसल पकने पे वो कितना गुना हो के पलट के हमारी झोली में आता है। तो कर्मों के ऊपर हमें दृष्टि रखनी है। जहाँ पे दाह संस्कार शमशान में देखा करते हैं, वहाँ पे तो वहाँ शब्द पड़े कि मुझे यहाँ तक लाने वालों आपका धन्यवाद, अब आगे की यात्रा मैं स्वयं कर लूँगा। परिवार, मित्र, संबंधी, उनका साथ केवल वहाँ तक का कहा है। श्री अमृतवाणी के पावन पाठ में हमने अभी पाठ किया कि मात पिता बांधव सुतदारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारनहारा। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की वाणी है कि मात पिता वनिता सुत बंधु, इष्ट मीत और भाई, पूर्व जन्म के मिले संयोगी, अंत ही को न सहाय। तो अंत में सहायक कौन है? केवल परमेश्वर का नाम कहा है। उपनिषदों के अनुसार हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा। परमेश्वर के नाम के अलावा इस दुखों के सागर, जिसे संसार सागर भी कहा है, भव सागर भी कहा है, इससे पार होने का अगर कोई साधन है तो केवल परमेश्वर का नाम है, केवल परमेश्वर का नाम है, केवल परमेश्वर का नाम है। परमेश्वर के चरणों में पावन श्री अमृतवाणी का पाठ परिवार ने जो उनके लिए प्रार्थना की है, परमेश्वर के चरणों में अर्पण करते हुए यही प्रार्थना है कि हे परमेश्वर, उस पावन आत्मा को अपने ही चरणों में वास देना। बहन रेणु जी और समस्त थापर परिवार, उनको ये दुख सहने की क्षमता देना। मैं समस्त श्री राम शरणम दरिसी रोड परिवार की ओर से इस परिवार के साथ संवेदना भी है और प्रार्थना भी है कि हे परमेश्वर, इस पावन आत्मा को चरणों में स्थान देवें, परिवार को ये भाना मानने की बल देवें, शक्ति देवें। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम। आगे का कार्य विद्वान शास्त्री जी, विशेष जी आए हैं, वो आगे देख लेंगे। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। बड़े ही दुखी मन से, दुखी हृदय से, क्योंकि इन सभाओं में भी बड़ा अंतर होता है। आदरणीय बड़े भैया अरुण थापर जी, जिनका चेहरा आज भी आंखों के सामने घूम रहा है, जब भी उधर से निकलना दुकान के आगे से राम 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 राम, हर समय जब भी मिलना राम नाम का शब्द हमेशा उनके अंदर चलता रहता था।
और जब पता लगा कुछ अस्वस्थ हैं और 2 दिनों में ही सारा जीवन का खेल खत्म हो गया। आज उनका सारा परिवार, उनके पिता सुखदेव थापर जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेणु थापर जी, पुत्र अंकुर जी, पुत्र वधू गरिमा, बेटी अरूप धमीजा, दामाद गौरव जी, भाई अशोक थापर जी, कितनी बड़ी पीड़ा की बात है। एक बाप कैसा इस परिवार के साथ वेदना ने खेल रचाया कि बच्चे अपने माँ बाप को श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन उल्टा हमारे आदरणीय सुखदेव जी अपने बेटे को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कितनी बड़ी ये एक कलयुग में एक पीड़ा की बात है, परिवार के लिए पीड़ा की बात है। जिस तन लागे सो ही तन जाने, कौन जाने किसी की पीर पराई। आज दुख बहुत है, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा परिवार से। मेरे लिए बोलना भी बड़ा आसान है, लेकिन परिवार के लिए सहना बड़ा मुश्किल है। माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी अगर टूट जाए तो जीवन में ये बहुत बड़ी पीड़ा है। लेकिन वेदना के आगे, परमात्मा के आगे हम संसार के लोग बेबस हैं। उस ईश्वर के हाथों की कठपुतलियां हैं हम संसार के जीव। कर्मों के अनुसार परमात्मा हमें नाच नचा रहा है और हम नाचने के लिए मजबूर हैं हम लोग। आज उस पुण्य आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि तो नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि श्रद्धांजलि तो उसको दी जाती है जो आयु से बहुत बड़ा हो। यहां बैठे हुए बड़े बुजुर्ग, यहां बैठा हुआ पिता क्या अपने बेटे को श्रद्धांजलि देगा? एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को श्रद्धांजलि देगा? क्या पुष्पांजलि देगा? नहीं। हम लोग उस पुण्य आत्मा के लिए प्यार लेकर यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। आइए, अभी आप अमृतवाणी जी के पाठ के माध्यम से सुना आपने कि अंत काल कोई दे सके न सहारा, कि अंत काल कोई दे सके न सहारा, केवल राम नाम तेरा तारणहारा। इस लोक में और परलोक में अगर कोई वस्तु किसी के साथ जाने वाली है तो केवल परमात्मा का नाम है। कल बात हो रही थी कि अरुण जी भगवान शंकर के प्रति बड़ी श्रद्धा, बड़ी आस्था, बड़ा विश्वास। कोई भी कार्य करना भगवान भोलेनाथ का कार्य नाम लेकर कार्य करना। आज भगवान शिव ने, और जब अंतिम विदाई दी गई उनको, तब भी महामृत्युंजय का ही जाप चल रहा था। उनकी लंबी आयु के लिए पता लगा कि अस्वस्थ हैं। रात 11 बजे से ही महामृत्युंजय का जाप प्रारंभ हो गया, हे भोलेनाथ। लेकिन बात वही है ना, जो जो विधाता ने, जो जो कुदरत ने लिखा हुआ है, इंसान बेबस है, लाचार है, कर कुछ नहीं सकते। केवल परमात्मा के पावन पवित्र नाम का सिमरण ही कर सकते हैं कि पुण्य आत्मा
हमारे आदरणीय अरुण ठाकुर जी को अपने चरणों का स्थान दे। पीछे उनका परिवार, उनके बच्चे, जो ये पहाड़ जैसा असहाय दुख हुआ है, इस दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर परमात्मा प्रदान करे। तो जितनी भी संगत बैठी है, सभी से मेरी प्रार्थना है, और विशेषकर परिवार से आदरणीय भाभी जी, रेणु थापर जी, बेटी, पुत्र वधू, पुत्र और परिवार। आपने गरुड़ पुराण के एकादश अध्याय में सुना था कि आप लोग जितना विलाप करेंगे अरुण जी की आत्मा को उतनी पीड़ा होगी। जितने आंसू धरती पर गिरेंगे वो सारे आंसू से जीव को पीने पड़ेंगे, लेकिन जितना परमात्मा का सिमरण होगा, परमात्मा का कीर्तन होगा, अरुण जी की आत्मा को उतनी शांति मिलेगी। तो आत्मा परमात्मा में जाकर लीन हो चुकी है, शिव में, क्योंकि शिव के भक्त थे। और जो महाकाल का भक्त होता है, भगवान कभी उन्हें मरने नहीं देते, भगवान तो उन्हें अपना धाम शिव धाम दे देते। तुम कहाँ चले गए हो, परिवार तुम्हें बुलाए। इतने बड़े जहां में छोड़ा हमें अकेला। इतने बड़े जहां में छोड़ा हमें अकेला। किस बात की ये दुनिया, किस बात का ये मेरा। जाती दफा तो हमसे कुछ बात करके जाते। तुम कहाँ चले गए हो, परिवार तुम्हें बुलाए। होती जरा सी आहट, लगता है तुम जो आए। आज देखते देखते 13 दिन निकल गए, और ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी शॉप से घर वापिस आए और पत्नी ने, बच्चों ने दरवाजा खोला, लेकिन अरुण जी तो नहीं देखे, लेकिन कुछ हवा के झोंके आए, कुछ हवा के झोंके आए। खोला किवाड़ देखा, कुछ झोंके हवा के आए। हमें हर घड़ी तुम्हारी मुस्कान याद आए। तुम कहाँ चले गए हो, परिवार तुम्हें बुलाए। सारा परिवार, भैया राजीव जी का रात को 11 बजे टेलीफोन आया कि अरुण जी बहुत अस्वस्थ है पंडित जी, अभी महामृत्युंजय का जाप आप प्रारंभ करवा दें। रात 12-1 बजे तक जो भी मेरे से बन पाया, और प्रातः बच्चे ने अपने हाथों से संकल्प कर
महामृत्युंजय का जाप प्रारंभ करवाया, लेकिन बात वही जो वशिष्ठ जी ने भरत को समझाई, क्योंकि इस बात का भरत ने उलाना दिया था कि हे वशिष्ठ जी, आप इतने ज्ञानवान, सर्व संपन्न, सर्व गुणी, इतने ज्योतिष के वक्ता, ज्योतिषाचार्य, आपके होते हुए अयोध्या नगरी में ये सब उथल पुथल कैसे हो गया? तो एक ही बात वशिष्ठ जी ने भरत को समझाई, बस वही बात मैं अपने परिवार, थापर परिवार, क्योंकि मेरा सारा अपना परिवार है, जो वशिष्ठ जी ने भरत को समझाया, सुनहु भरत भावी प्रबल, सुनहु भरत भावी प्रबल, और विलख कयो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये कुदरत के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं है। जो परमात्मा ने, जो विदना ने लिखा, स्वयं विधाता नहीं टाल पाए, तो आप और मैं तो फिर चीज ही क्या है? इस मंच पर, इस सभा में बैठे हुए एक बात का विचार करना होगा, क्या श्री राम जी जानते नहीं थे कि सोने का हिरण तो कभी हो ही नहीं सकता? लेकिन वक्त, टाइम, समय, जब देवी देवता बावरे हो जाते हैं तो हम संसार के व्यक्ति फिर क्या चीज है? बस दिन रात पत्नी बच्चे रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं किसी तरीके, लेकिन जब टेलीफोन आया, पता लगा अरुण जी संसार का त्याग करके चले गए, तो मानिए पांव तले जमीन निकल गई। जो बिल्कुल अच्छे भले कल तक, लेकिन आज तस्वीर के रूप में हमारे सामने खड़े हैं। चिट्ठी न कोई संदेश, चिट्ठी न कोई संदेश, ना जाने कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा कर ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी। जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हर वक्त यही है गम, हर वक्त यही है गम। उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले
से प्रार्थना करूंगा, कृपया थोड़ा थोड़ा आगे आगे हो जाएं, बहुत जगह पड़ी हुई है, कृपया थोड़ा कष्ट करें हिलने का, आगे आने वाले पीछे से सभी भाई बहनों को बैठने के लिए जगह मिल सके। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रस्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम, हाय दिल में रह गई बात, हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं, तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए, कि हाँ तुम चले गए। और बेटा अंकुल जिन्होंने अपने पिता को जब हॉस्पिटल लेकर गए, पत्नी रेणु थापर जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी, आज बेटी दामाद पुत्र पुत्र वधू अपने पिता की तस्वीर को देखते हुए अंकुल जी यही कहते हैं, मेरे पिता मेरे भगवान, मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया करके बिना कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया करके बिना कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मैंने भाव समर्पण का गुण आपसे सीखा है, मैंने भाव समर्पण का गुण आपसे सीखा है, सिखलाया आपने ही जीने का सलीका है, अभी और सिखाना था, अभी और सिखाना था, ऐसे तो न जाना था, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया करके बिना कहाँ
ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਥਾਪਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪੰਡਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਬੜਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਨੂ ਥਾਪਰ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਬਣੇ, ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੰਬੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਥਾਪਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਿਸਿਸ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਜਾਗੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ JP ਨੱਡਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਆਇਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੇ ਜਾਮਵਾਲ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, श्री रजीव कतना जी, श्री अवनेश मिश्रा जी, श्री गौरव खुल्लर जी, सर कंवर नरेंद्रपाल सिंह जी, गौतम जलंधरी जी साढ़े हाजिर ने। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पुष्पिंदर सिंह जी भी साढ़े हाजिर है, श्रीमती किरण शर्मा जी, साक्षी दुर्गा जी, सीमा शर्मा जी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के प्रवक्ता श्री अनिल शरीफ जी साढ़े हाजिर है, डॉक्टर सुभाष वर्मा जी, श्री परवीन डांग जी, श्री दिनेश सरवाल जी, सरदार सिमरनजीत सिंह बैंस MLA, श्री अश्विनी शर्मा जी प्रधान कांग्रेस कमेटी, श्री विनय जैन जी, दर्शन अरोड़ा जी, श्री कीर्ति रावत जी, प्रमोद बाजे जी, प्रेस रिपोर्टर गोविंद जी ते होर भी कई पतवंते सज्जन साढ़े हाजिर ने। मैं निवेदन करांगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री अनिल शरीफ जी को आन ते श्रद्धा के फुल भेंट करन। श्री अनिल शरीफ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥਾਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰੁਣ ਜੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅੰਕਲ ਦਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲੋਕਸੀ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ लेकिन अगले दिन जो ICU शिफ्ट भी कर दिता, मैं और मेरे मैसेज को खालचा पूछन गए आगे करके अपने को तो मन में तसल्ली हुई कि संकट टल गया। लेकिन उन्हीं बलवान अगले दिन से आया कि उनकी सारी ये ठीक है कि जड़ा व्यक्ति आता है हर एक ने जाना, लेकिन अपने स्वास्थ्य की पूंजी को किस तरीके खर्च कर रहा और अरुण जी ने अपने जीवन को किस तरीके समाज में रहा, धार्मिक खेत्र हो, राजनीतिक खेत्र हो, समाजिक खेत्र हो, वो अज का एक कट दसदा है। सारिया समाजिक जथेबंदियों के नेता, धार्मिक जथेबंदियों के नेता, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेता अज इस दुख की घड़ी परिवार के नाल खड़े और साडी भैन रेणु, मैं एक दावे नाल कह सकता कि इहो जिहियां भैनां भी बहुत घट होंदियां ने राजनीति दे विच, जिहड़ा इन्ना समर्पण नाल काम करदा। पार्टी का कोई काम हो, कितने हो, किसी शहर च हो, प्रदेश के किसी इलाके च हो, या पंजाब तो बाहर शहर साड़ी इस भैन ने कभी कोई मीटिंग
ਜਿਵੇਂ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਸੰਭਾਲਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜੇ ਭੈਣ ਨੇ ਰੇਣੂ ਜੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਰੁਣ ਜੀ ਸਨ। पूरी तरह सहयोग देना और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना और खुद भी नाल कंधे नाल कंधा मिला के चलना, ये बहुत बिरला देखा। मैं अपने वालों भारतीय जनता पार्टी पंजाब वालों इस दुख की घड़ी दे विच यही कह सकता कि परमात्मा तो बहुत जल्दी की, लेकिन मोदी अटल प्रभु के चरणों च यही अरदास हे प्रभु बेची आत्मा अपने चरणों च स्थान देना और पिछे सानू सारे को दुख सहन की शक्ति देना। जय श्री अशोक वर्मा जी, हरकेश मित्तल जी, दर्शन लाल मिर्जा जी, NEC का जी कौंसलर कमल भंडारी जी, श्री रमेश दरिया जी, श्रीमती भावना गुप्ता जी, कौंसलर गुरजीत सिंह मिट्टू जी, भारतीय जनता पार्टी के साबका प्रदेश अध्यक्ष प्रोफैसर रविंदर भंडारी जी, लड्डू जी थापर, सुभाष पाटिया जी, राकेश नंजहा जी, गोविंद बूधाम तो SD मिर्जा जी, दीपक जी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तो जॉन मसीह जी, विजय मौर्य जी, अशोक विमानी जी, साहिब हुसैन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच तो खुर्शीद आदिल बिन मास्तिया जी। तो मैं बेनती कराँगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री परमीर बांसल जी को जो भी 2 मिनट अति श्रद्धांजलि में परमीर बांसल। दोस्तों ऐसा परिवार जोड़ा पूरा तो पूरा समाजिक कामों के अंदर, धार्मिक कामों के अंदर, राजनीतिक कामों के अंदर लग्या हो। समाज ऐसे लोग विरले होते हैं जितने सारी भैन रेणु थापर जी दिन रात भारतीय जनता पार्टी के विचारों को लेकर पूरे पंजाब हर कोने के अंदर अपना प्रयास करते रहे। थापर साहब धार्मिक समाजिक लुधियाने हमेशा हर कोई चंगा काम करके परिवार ऐसे लोग मेरे दिलों भुलाए नहीं जा सकते, संगठन के तौर पर, समाज के तौर पर। मैं भैन को देखता ज़्यादातर जो महिलाएं होंगी हैं वो बेटाइम समाज से निकल तो गुरेज करती हो, लेकिन एक निष्ठावान कार्यकर्ता के होने के नाते अपनी जिम्मेदारी जिस तनदेही ये निभाते से अभी समझ सकते थे कि पिछों साढ़े वीर थापर साहब का उन्होंने कितना हौसला देते थे, कितना उन्होंने सहयोग होता है। अज ताकत साढ़े तो पिछड़ गई, फिजिकल रूप साढ़े तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कितने कमां का उन्होंने समाज को कितने सहयोग का हमेशा साढ़े तो असर रहेगा, साढ़े तो जीवित रहेंगे। मैं अपने वालों भारतीय जनता पार्टी वालों उस पवित्र आत्मा को शब्द अर्पित करता हूँ, परम पिता परमात्मा को विनती करता हूँ उन्होंने अपने चरणों में स्थान देना, परिवार के दुख सह सके इसका शांति। जिस दिन उन्होंने डेथ हुई सवेरे मैं मिल गया तो मैं थापर साहब ने फेस नहीं कर सकिया क्योंकि इन्ना दुख सी सारे लेखा से कुछ नहीं कर मेरे नाल ज्ञान थापर मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट ट्रस्टी सी उत्थे इन्होंने हमेशा बहुत बढ़िया रोल अदा किया, पॉजिटिव स्टैप चुके। इन्होंने हर वे कोशिश की कि मंदिर को किस तरीके वधिया तो वधिया बनाया जाए। इन्होंने सुझाव से कई बार लड़ भी पैंते थे। अज दुख की गल है कि अज मैनू सुझाव देने वाला नहीं रहा। बहुत दुख की गल मैं आखिर बहुत नहीं शेयर कर सकांगा। मैं आखिर च यही कहना कि जिथे इन्होंने परिवार में जिन्होंने मैं भी शामिल हाँ, एडा बड़ा
ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ। तो मैं विनती करांगा श्री प्रदेश के जनरल सकत्तर श्री जीवन गुप्ता जी ने वहाँ के शब्दों को पेश करना श्री जीवन गुप्ता जी। और आज इस हॉल के अंदर साढ़े उस जिन्होंने से सारे बहुत प्यार करते अरुण जी को अंतिम श्रद्धांजलि देने वास्ते एकत्रित हुए भैनों के काम मन ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ नहीं हो रहा कि अरुण जी साढ़े च नहीं रहे। अनेकों बारी मेरा मिलना होया, बेशक पार्टी दे विच भैन जी एक्टिव नज़र आते थे, जदों भी कोई पार्टी का काम होना, कदे घर जाना, बैठ के गलबात करनी, तो मैं कदे भैन जी नाल गल करनी, भैन जी कोई समस्या नहीं, इस टाइम निकलना या है वो किसी तरह की समस्या है, तो भैन ने एक गल कहनी कि मैनू थापर साहब की पुलिस को थापर साहब हमेशा मेरे नाल खड़े हैं और मैं समाज का और पार्टी का काम करने वास्ते मैनू ना टाइम की कोई दिक्कत है तो ना मैंने होर किसी की। सो अज जी गल मैं दसनी चाहना कि जदों कोई इंसान समाज वास्ते काम करता है या अपने संगठन वास्ते पार्टी वास्ते काम करता है, तो पिछे परिवार की सपोर्ट जी बहुत जरूरी होती है। साडा खुश प्रधान समाज है, अमूमन गल जो चलती है कि जी ये पिछे अर्धांगनी का हथ है, समाज से कामयाबी हासिल की है, समाज का काम करने के जिस ग्रुप पर थापर साहब बारे मैं कह सकता उनके बारे कि उन्होंने इस कथन को गलत किया है। उन्होंने जिन्नी सपोर्ट समाज का काम करने वास्ते और पार्टी का काम करने वास्ते भैन जी ने की है, वो एक अपने आप से एक संदेश दिता है कि अरुण जी नारी प्रधान समाज में बहुत औखा होता है। आप सारे आम जीवन च विचर रहे हैं और हमेशा जदों कि नारी को बाहर कढ़न की गल आती है, नारी को समाज के काम च प्रेरित करने की गल आती है, तो असीं अपने आप को सीमित कर रहे हैं। और ये मैं समझदा कि अरुण जी की बहुत बड़ी उन्होंने समाज को देन दी है। सो मैं समझदा कि सानू बहुत बड़ा घाटा पिया, साडा पार्टी का बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा घाटा पिया, परिवार को बहुत बड़ी क्षति हुई। मैं तो परिवारक तौर पर भी भैन जी के नाल हमेशा गल करते रहते और मेरे नाल हक नाल गल करते, सो ये घाटा नहीं पूरा हो सकता। परमात्मा ने जो लिखी हुई जो साडा हिंदू समाज का हमेशा असीं समझते हैं कि जो लिख के आ गया उन्हें पूर्ण होना है, उन्होंने नहीं टालिया जा सकता। पर मैं समझदा कि असीं जिन्ने भी इत्थे दोस्त मित्र रिश्तेदार या पार्टी के लोग बैठे हैं, परिवार है साडा, भैन जी को कदे इस गल का एहसास नहीं आने देवांगे कि थापर साहब जो अज नहीं रहे, हमेशा चट्टान की तरह तुहाडे नाल खड़े हैं। और मैं अरुण जी के चरणों की श्रद्धा से फुल भेंट करता है, भारतीय जनता पार्टी पंजाब वालों उन्होंने चरणों की श्रद्धा से फुल भेंट करता है और परमात्मा के अगे बेनती करता है कि सब सबू परिवार को पीछे आना पड़ेगा। बल बख्शन और मैं निवेदन करांगा श्रोमणी अकाली दल के सीनियर लीडर सरदार महेश सिंह गरेवाल जी को कि वो आम 1 मिनट वास्ते श्रद्धा का फूल भेंट कर सरदार महेश सिंह गरेवाल। मेरे दोस्त भरा भैन, बड़ा औखा होंदा है जब किसी को विदायगी दी जाती है। कुछ लोग पला लिए दिना लिए बाहर जाते हैं तो मन उदास रहता है, पर जेड़ा बंदा हमेशा लिए चले जाए ਉਹਦਾ दुख झलना बहुत मुश्किल होता है।
मैं बहुत नेड़े होके रेणु जी ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। मैं कदे नारी को कमजोर शक्ति नहीं समझिया क्योंकि गुरबाणी तो बराबर का दर्जा दी है तो असीं ना कमजोर कह सकते ना है, पर जिम्मेवारियां होंदियां ने इस तरह दी घर दी निभाउणियां वो जिम्मेवारियां निभाउण के बावजूद भी ये मेरे ख्याल सवेरे 8 बजे तक मेरे को अपनी टीम नाल हाजिर होंदे सी। जब अरुण जी के जान का पता लग्या है दुख तो है ही है, सब तो बड़ा दुख जिथे रेणु जी नहीं आना उत्थे पिता जी सुखदेव जी भी बड़ा बड़ा है, क्योंकि दुनिया के गुरबाणी जिथे एक दुख भुख नूं दसदी है उत्थे एक दुख विछोड़ा भी दसदी है, तो फिर वड्डियां दे बैठे छोटियां दा जाना उदों बड़ा दुख होंदा। सो मैं बहुता ना कुछ कहता होया यही गल कहनी चाहुंदा कि साथ जिन्ना असीं निभिआ रेणु जी तुहानूं हुण बच्चिआं लई पिता दा जिम्मेवारी भी निभानी पऊगी, तुहाडे मोढिਆਂ ते भार होर वध गया है। ठीक है पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के समूह अहुदेदारां ने कहा कि नाल खड़े ने, पर जिहड़ा परिवार की कमी है वो संसार साझा नाल नहीं घटदी, सहारा जरूर हुंदा उन्हां दा। ते मैं अपने वालों अपनी पार्टी के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल वालों थापर परिवार नाल इस विछोड़े की घड़ी में दुख साझा करता होया उस परमात्मा के ही बेनती करता है, तो परिवार में भी यही कहना कि साढ़े लिए भी हुण इक्को ही बेनती है मन च, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लाके मेरा, इन ही लफ्ज़ों नाल अपना अरुण जी नूं शरधा ते सत्कार पेश करता होया रेणु जी ने विश्वास दिवा सकता है कि मैं बतौर एक भरा दे बतौर तुहाडी रही सहयोगी पार्टी के तुहाडे वल्लों दिते हुए साथ का हमेशा ही एहसान से एहसास करता रहांगा कि जिन्हें जो है हमेशा हाजिर रहांगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जी देने वास्ते बजट पर श्रीमती रचना शर्मा जी, श्रीमती नीलम तमन जी, श्रीमती मंजू जी ते नगर निगम के साबका डिप्टी मेयर श्री R.D. शर्मा भी हाजिर ने। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अश्विनी शर्मा जी को शोक प्रस्ताव है, उन्होंने आप भी आना सी पर कुछ निजी कारण करके सारे नहीं आ सके, उन्होंने भी शोक पता है। तो मैं बेनती कराँगा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रोफैसर भंडारी जी ने वो आन तो श्रद्धांजलि दें प्रोफैसर जी ने। इस शोक सभा उपस्थित माताओं बुजुर्गों बहनों ज्यादा समाचार जी के अचानक देहांत का मिलया असी समझ सकते हैं कि जिन्ना मैनू भी बड़ी देर तक ये समझण दी कल्पना करने की कह लो कि समय लग गया, लगभग ऐसा ही सोचना बाकी लोगों का। थापर दंपति एक विचित्र और एक विलक्षण पहचान लुधियाने प्राची वाले मेरे साथियों ने दसिया कि किस ढंग नाल साडी भैन केवल तो केवल राजनीतिक खेत्र के ही नहीं समाजिक खेत्र के भी एक अपनी अलग पहचान रख रही है। उत्थे अरुण जी भी भगवान जी दस के गए कि कैसा सहयोग उन्होंने मिलता सी। अरुण जी की भी लुधियाने के एक अलग और विलक्षण पहचान सी। आमतौर पर लगता है कि माता पिता जो एक व्यक्ति परिवार की चिंता करता है तो दूसरा
समाजिक तौर पर कई बार सक्रिय रहता है। ये दोनों ही समाजिक तौर पर भी और पारिवारिक तौर पर भी अपनी जिम्मेवारियों का बड़ा ही विशेष ढंग से निर्वाह करता है। मेरा इस परिवार का बड़ा पुराना परिचय थापर परिवार लुधियाने का प्रतिष्ठित परिवार लुधियाने के राजनीतिक धार्मिक अध्योगिक पत्रकारिता हर क्षेत्र से इन्हों की पहचान और कुछ गुण जिदा विरासत मिले पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे गुण इस परिवार के हर एक सदस्य भैन जी की पहचान भारतीय जनता पार्टी की केवल पंजाब तक सीमित नहीं, साडे राष्ट्रीय नेतृत्व के विच भी इन्हां दी एक अलग पहचान असीं कि भारतीय जनता पार्टी के विच मैं शायद इन्हां तो बाद आया, लेकिन इन्हां दी वर्किंग तो बहुत प्रभावित रहे और जिस तरीके जी कह रहे थे कि थापर साहब की बहुत सपोर्ट से पहले मैं समझ सकता वो कमी पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ ऐसिया चीजें जो परमात्मा ने अपने को रखी है असी मात्र ते मात्र अरदास कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि भैन जी अरुण जी की कमी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन जैसा स्नेह जैसे संबंध तुसी विशेषकर लुधियाना पंजाब बनाए ने सारे कमाल के उत्ते हर वेले हाजिर है, उन्होंने कमी जिदा मैं क्या पूरी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जैसा योगदान अजे तक समाज और राजनीतिक क्षेत्र को दिता है, भारतीय जनता पार्टी पारिवारिक पार्टी है, उसका हर एक मैंबर हर एक कार्यकर्ता पार्टी वास्ते हाजिर है। मैं परमपिता परमात्मा को अरदास करता है वो एक ऐसी पवित्र आत्मा को अपने चरणों से वास दे कि जरा दुख थापर परिवार को दिता उस तो कितने ज्यादा भर उस दुख को सहन करना दे। ओम शांति। समाज इजाजत नहीं दिता, बाकी बुलारियां तो इन्होंने श्रद्धांजलि से मैं सारे को माफ़ी मंगता तो बेनती करना भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पुष्पिंदर सिंह जी को जो आके सारे का धन्यवाद करन। श्री पुष्पिंदर सिंह भाई मेरे साथी और उपस्थित मातृशक्ति, मेरे तो पहला बोलदिया परिवार के बारे प्रमोद जी ने, प्रोफेसर साहब ने, अनिल जी ने या जीवन जी ने बहुत सारिया गल्लां दसियां, लेकिन रेनू जी ने जिस वेले राजनीतिक जीवन शुरू किया, अंकुर भी और उसकी भैन दोनों बहुत छोटे से, कई बार अचानक होंगे तो इकट्ठे असी भारतीय जनता पार्टी लगभग 7 साल के उससे काम शुरू किया हो। बड़ा अजीब लगता सी भी किस तरह भी ये भैन साड़ी जादू लगता सी भी जिथे कहो उत्थे हाजिर, जिस कार्यक्रम बुलाया हर टाइम हाजिर। मेरे तो पहला भी किया गया कि हर व्यक्ति के पीछे नारी का हाथ होता है, जीवन जी ने भी किया गल कही, लेकिन इत्थे जिस तरह पूरा परिवार भी चलाता सी, धार्मिक क्षेत्र च काम भी करते सी और व्यापारिक क्षेत्र च भी बहुत नाम है थापर परिवार का,
बाबू जी के समय तो सुखदेव जी के समय तो कारण कि मेरे पिता जी के नाल और इन्होंने इकट्ठे काम किया भारतीय जनसंघ के अंदर। अज मैं और रेनू इकट्ठे काम कर रहे हैं, बहुत पुराना व्यवहार है। ये कमी कभी पूरी ना होने वाली कमी है, लेकिन तेरा पाना मिठा लागे। ये थापर परिवार में कमी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के परिवार से कमी आई है जिन्हें पूरी करना बहुत मुश्किल है, असंभव है। लेकिन जो नीति ने लिखा है वो अनुसार चलना पैंदा सन। और मैं पूरे परिवार के नाल आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह खड़ी है। और मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी सुबह मेरी उन्होंने गल हुई सी, कल ऐसा सी कि वो आएंगे, लेकिन सूर्य द्वारा उन्होंने टेलीफोन आया कि मेरे वालों भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करना। अचानक कुछ जरूरी काम पै गया। मैं अपने वालों भारतीय जनता पार्टी लुधियाना वालों और मेरे प्रदेश अध्यक्ष श्री अश्विनी शर्मा जी वालों अरुण जी के चरणों श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। और तुसी सारे इस दुख की कड़ी दे विच परिवार का दुख वंडाण में शामिल हुए। परिवार का हिस्सा होने के नाते अध्यक्ष एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं परिवार का हिस्सा है, मेरी जिम्मेवारी लगी। मैं तुहाडा सबका इत्थे आन के बहुत बहुत धन्यवाद करता है। और अरुण जी के श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परम पिता परमात्मा मोरी विनती करता है कि इन्होंने अपने चरणों स्थान दें। और पिछले सानू सब परिवार वालों ये जोड़ा आघात लगे उन्होंने सहन का बल बख्शण। ओम शांति। जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे हरिओम जगदीश हरे। जो ध्यावे मन पावे दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे। पार परम परमेश्वर, पार परम परमेश्वर, आप सबके स्वामी हरिओम जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम रक्षा करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक प्रभु स्वामी, कृपा करो भरता हरिओम जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। इस विदमिनो दयालो, इस विदमिनो कृपालो। तुमको मैं पुकती हरिओम जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकर तुम मेरे स्वामी, रक्षक तुम मेरे। अपने हस्त बढ़ाओ, अपनी चरण
क्षय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी काष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बनाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा